So dear students, this is going to be my fourth video on transformation, change from one grammatical form to other without changing the meaning. It's called transformation. और हमने जो है अपने 3 वीडियो बना लिए थे. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके मीनिंग को बिना चेंज किए. नाउ टुडे विल डिस्कस दैट हाउ कैन वी चेंज फ्रॉम compound sentences to simple sentence without altering the meaning. Okay, so before I start with my video, first of all we'll know about the structure of compound sentences. You all know it very well. Then again as you all know it very well, but I think we need to discuss it again. So that is why I'm discussing that structure of compound sentence first. स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो है आपके पास 2 प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए. यू मस्ट हैव 2 प्रिंसिपल क्लॉज एंड दैट 2 प्रिंसिपल क्लॉज मस्ट बी कनेक्टेड विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, सो आपके पास 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस होनी चाहिए. क्लॉजेस क्या होता है? कुछ शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहता है. सो क्लॉज इज अ कलेक्शन ऑफ few words which have subject and verb, subject and verb combined. So that is the structure of a clause. So in compound sentence we have 2 clauses and that 2 clauses are joined with a coordinating conjunction. Okay, so this is the structure of compound sentences. And in my last video I told you about the a simple formula which you must remember for coordinating conjunctions. So coordinating conjunction के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो है फैन बॉयज. तो ये फैन बॉयज में आपको लिखना है, यू नीड टू राइट फैन बॉयज. ओके, सो फैन it stands for A stand for and, then N stand for nor, B stand for but, O stand for or, Y stand for yet, and S stand for so. Okay, so these are the coordinating conjunctions which are usually used in compound sentences. Apart from these there are so many other conjunctions too जो कि correlative conjunctions होते हैं, जो उसको आप कहते हैं जैसे either or, neither nor. बट ये जो कंजंक्शन है इसमें for है, else है, otherwise है, और भी कंजंक्शन है, लेकिन मोस्टली these conjunction are important. तो आप फैन बॉय फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन फॉर्मूला को याद करके आप ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं. ओके, सो कंपाउंड सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है कि 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस कनेक्टेड विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, सो इसमें आपका ये सारे फॉर्मूला मतलब ये सारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसको आप यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू सिंपल सेंटेंस. ओके, सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज इट शुड हैव 1 फाइनाइट वर्ब एंड 1 subject, 1 predicate. We all know it should have 1 clause. एक clause होनी चाहिए या एक sentence होनी चाहिए. Many students they have this opinion, they have this confusion, you can say, that they ask you what is the difference between a clause and a sentence. एक sentence और एक clause में क्या differences होती हैं? दोनों में सब्जेक्ट होता है, दोनों में वर्ब होता है, दोनों शब्दों का समूह होता है. बोथ ऑफ दीज आर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. लेकिन जो अंतर है वो ये है कि क्लॉज जो है हिंदी में उपवाक्य कहते हैं और सेंटेंस को वाक्य कहते हैं. यानी कुछ क्लॉजेस को मिलाकर जो है हम एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, now what we'll do that we'll know about the structure of simple sentence, as we all already have discussed that in simple sentence we have 1 finite verb, it means 1 subject and 1 predicate. Okay, and now let's talk about what is a finite verb. Finite verb is always get affected by its subject
सब्जेक्ट्स, पर्सन नंबर एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो अपने सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस से हमेशा प्रभावित होता है। जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंगली आपका वर्ब भी चेंज होता जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राइटिंग ओवर हियर, ही वॉन्ट्स टू गो, they want to go, we want to go, or if I write here he wanted, we wanted to go, or the boy wants to go. So here we can see that I've written 4 sentences. हमने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा। He subject wants verb to go, object. Okay. अब यहाँ पे जो है इसको wants to go, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में देखिए, he wants to go, they want to go, we wanted to go, the boy wants to go. So one thing you notice very well that here only this verb is changing. So यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो wants आ गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो want आ गया, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है तो उससे नहीं फर्क पड़ा है, बट द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस तो wanted आ गया। The boy wants to go, here again we see the singular number आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे verb singular बन गया as जुड़ के। So this thing is only changing, this verb is only changing. So this is called finite verb which keep on changing according to its subjects, number, person and tense. But this part, to go, it is not changing. Though it is working as an object here in this sentence, but it is not changing. यद्यपि हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन ये बदल नहीं रहा है। तो दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब एंड दिस इज फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वो वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, और फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस में जरूर होता है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, दैट देयर शुड बी अ फाइनाइट वर्ब। ओके, नाउ लेट्स सी दैट हाउ कैन वी चेंज फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंसेस। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इफ योर कंपाउंड सेंटेंस इज कनेक्टेड विथ a coordinating conjunction and, you must remember this thing what I am saying, that if your compound sentence is connected with a coordinating conjunction and, while changing into simple sentence you need to use present participle or perfect participle. अगर आपके कंपाउंड सेंटेंस 2 क्लॉजेस होते हैं तो 2 क्लॉजेस अगर जो है एंड कंजंक्शन से, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करने की जरूरत है कि आप जब उसको सिंपल में चेंज करेंगे तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। या तो प्रेजेंट करेंगे या परफेक्ट, लेकिन कभी जो क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड व्हेन टू यूज परफेक्ट पार्टिसिपल, so we know that when to use present participle and when to use perfect participle. When your sentence shows that one work is done and another work is done immediately after that, we know that we always use present participle. यानी सांप को देखकर डरने का काम या पुलिस को देखकर चोर का भागने का काम, जो एक्शन का रिएक्शन होता है, वो हमें पता है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं उसके लिए, है ना। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज करते हैं? जब हम देखते हैं कि एक काम कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा शुरू होता है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। एक का जो फॉर्मेशन है दैट इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग, सीइंग, यू नो, एंड सेकंड होता है हैविंग के साथ V3। ओके, सो लेट मी टेल यू अगेन दैट इफ कंपाउंड सेंटेंस is connected with and conjunction, while changing into simple sentence we need to use either present participle or perfect participle. Now let's see how.
Now I'm going to write an example on the board. अब यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूं, the man saw the snake and he ran away. Okay, so this is the sentence, the man saw the snake and he ran away. So first of all, this is compound sentence which is connected with this coordinated conjunction and. Okay, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले and वाली जगह पे, suppose the sentence is the man saw the snake and he ran away. Okay, so first of all ये and वाली जो जगह है वहां पे हमने एक कॉमा लगा दिया. Okay, we will put a comma instead in place of this coordinating conjunction and. Okay, now what we need to do, that we need to change the part which is before this and conjunction. इस and conjunction के पहले वाला जो sentence है उसी को हमें बदलना है. सेकेंड वाला सेंटेंस जो है उसको हमको नहीं बदलना है. ध्यान से देखिए, एंड की जगह पहले हमने कॉमा लगाया और देन वी नीड टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट. अब हमको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है. द मैन सॉ द स्नेक एंड ही रैन अवे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन. द मैन आपका क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट. तो पहले कॉमा लगाने के बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे द मैन. उसमें सम सिंपल जो स्मॉल लेटर में लिखेंगे. यहाँ पे शुरू में द मैन का इंट्रोडक्शन था तो वो बिग लेटर में था, लेकिन इसको हमने शुरू में लिख दिया, सॉरी इसको हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया. सो द मैन सॉ द स्नेक एंड ही रैन अवे, एंड की जगह कॉमा लगाया. फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, देन सब्जेक्ट द मैन लगाया और उसके बाद एंड के बाद वाला जो भाग है आपका ही रैन अवे. ओके, यानी क्या करना है आपको, एंड कंजंक्शन के बाद वाला भाग तो उसी तरह रहने देना है, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट को उसमें जोड़ देना है. ओके, सो सब्जेक्ट मैंने जोड़ दिया द मैन. अब ही लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी द मैन हो गया रैन अवे. ओके, ये मैंने लिख दिया. अब यहां से द मैन को हटाकर हमने पीछे कर दिया. नाउ अब जो है इस द मैन को हमने हटा दिया तो बचा हमारे पास क्या, सॉ द स्नेक. अब हमारे पास बचता है सॉ द स्नेक. ठीक है, इस कॉमा के पहले सॉ द स्नेक बच रहा है सिर्फ. नाउ व्हाट विल डू कि अब हम सॉ को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, क्योंकि काम सांप को देखने का और उसके बाद तुरंत भागने को हुआ है. तो वी नीड टू नो दैट वी कैन चेंज इट ओनली इन प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. और इसको हम कैसे चेंज करते हैं, सॉ को हम सी बनाएंगे और आईएनजी जोड़ देंगे, सीइंग द स्नेक. ओके, सो यहां पे हमने क्या किया, इस वाले भाग को सॉ द स्नेक को हमने चेंज किया सीइंग द स्नेक. ओके, सीइंग द स्नेक, उसके बाद ये कॉमा, उसके बाद द मैन रैन अवे. नाउ इट हैज बिकम अ सिंपल सेंटेंस. ओके, फ्रॉम दिस कंपाउंड सेंटेंस. Now let me tell you again in English, okay, so that my English knowing student can understand it well. First, there are two clauses in compound sentences. दो clauses होते हैं which is connected with this conjunction and. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले and conjunction की जगह एक कॉमा डालेंगे. कॉमा डालने के बाद पीछे वाला जो भाग है वो वैसे ही रहेगा. वी आर नॉट, अरे मैं इंग्लिश में बोलने वाली थी. सो व्हाट विल डू दैट, फर्स्ट वी नीड टू पुट अ कॉमा and then rest of the sentence, but before that we will have to write the sentence, the subject. We need to write the subject, that is the man. So the man ran away, it would be like this. We cannot write he. आपको पता है कि अगर आपको सेंटेंस के शुरू में नाउन एंड प्रोनाउन दोनों है तो आपको प्रेफरेंस देना है नाउन को, प्रोनाउन को नहीं. So what we'll write, the man ran away. Now we have left with these two things, saw the snake. So what we'll do, that this verb saw, this finite verb, this is finite verb. Okay, the man saw the snake, it is in past indefinite tense.
So this finite verb will need to change in present participle, non-finite. So verb के first form में ing. So what we'll do, that will change it into present participle. It will become seeing. So seeing the snake, the man ran away. Okay. So now we have changed it. Now let's see that how can we change from compound to simple sentences by using having plus V3, that is perfect participle. ठीक है. And conjunction आपका रहेगा. But remember कि अगर आपके कंपाउंड सेंटेंस में एंड कंजंक्शन आता है तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलता है या परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलता है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव अनदर एग्जांपल. सो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, द मेड completed the household chores and went away. So this is the sentence, okay? The maid completed the household chores. Household chores means घर का कामकाज and went away. तो नौकरानी ने घर का कामकाज पूरा किया and went away. Okay, so this is the sentence where we can find that it is not actions reaction. It means there is no quickness in this sentence. After completing one work, the second work happened. एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ है. तो आप क्या करेंगे, ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है and this is एक कंपाउंड सेंटेंस है. व्हाट विल डू, एंड की जगह हम सबसे पहले एक कॉमा लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पे सपोज की एंड है, सो वी पुट अ कॉमा एंड देन वी नीड टू राइट द सब्जेक्ट. ओके, ऑलरेडी वी हैव वेंट अवे द वर्ब, सो वी नीड टू राइट द सब्जेक्ट द मेड. सो विल राइट इन स्मॉल लेटर द मेड वेंट अवे. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेड. So it would be subject and verb. The maid went away. After comma, we have written this thing. Now, अब हमारे पास बचा completed the household chores. Okay? Completed the household chores. Now, what we need to do, that we'll need to change it into perfect participle. अब हम इसको क्या करेंगे? ये वाला सेंटेंस तो अगर आप देखेंगे तो ये सेंटेंस V2 वर्ब का यूज हुआ है और पास इंडेफिनेट में है, लेकिन इसको हमें क्या बनाना है, हैविंग प्लस V3 यानी परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है. सो हैविंग प्लस V3 हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, हैविंग कंप्लीटेड द हाउसहोल्ड chores. जगह नहीं है इसलिए बेटा मैंने ऐसे लिखा. So having completed the household chores, the maid went away. Now it has become a simple sentence by using perfect participle. मैं इधर आ जाऊं थोड़ा. अब आपको दिखाई पड़ रहा है, having completed the household chores, the maid went away. ठीक है. So having completed the household chores, यहाँ पे एक कॉमा आ जाएगा. The maid went away. It has become, simple sentence. So we have changed this sentence, this compound sentence into a simple sentence. Okay. So now let's see another method which we can use. Another method मतलब compound sentence में ये मैंने देखा and conjunction लगा के या तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं या परफेक्ट पार्टिसिपल में. ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस जो है वो किस तरह का है. अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल शो कर रहा है दो सेंटेंस यानी एक काम के तुरंत बाद हुआ, तो जैसे सांप को देखकर डरने का या चोर पुलिस को देखकर भागने का, तो वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे अगर एंड कंजंक्शन आया. और अगर एक काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हुआ तो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे. नाउ अगर आपके कंपाउंड सेंटेंस में, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, और एल्स अदरवाइज, अगर आपके कंपाउंड सेंटेंस में वी कैन फाइंड और एल्स और अदरवाइज, इफ
these three conjunctions comes. तो जब हम उसको चेंज करेंगे सिंपल में, तो either we will change into 2 plus v1. It means to go, to eat. It is called infinitive, non-finite verb. Okay, to go, to eat, है ना, to play. Or we will change into second form, that is to avoid plus v1 में ing. It means to, यहां पे जो होगा वो होगा to avoid getting sick या to avoid being hungry. Okay, so अगर आपके, फिर से मैं दोहरा दूं चीज को, लेट मी टेल यू अगेन. अगर कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास और एल्स अदरवाइज कंजंक्शन आता है, तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज इट इनटू टू वेज. इफ एल्स or and otherwise comes in your compound sentences, we can change them into two ways. First, 2 plus v1, that is to go, to eat, or to avoid plus v1 plus ing. Okay, to avoid getting sick, to avoid being late. Okay, this type of things. So when to use 2 plus v1 and when to use to avoid plus v1 plus ing. If your sentence after these conjunctions, if your sentence is negative, after these conjunctions, the sentence, let me tell you again, I'm just making you understand, try to understand what I'm saying. If two clauses are given, first clause is given, it does not make any differences. It can be whatever, it is positive or negative, it doesn't make any effect. But after these conjunctions, if your sentence is negative, you can use 2 plus v1. And after these conjunctions, if your sentence is positive, then you can use to avoid plus v1 plus ing. Okay, so I am giving an example so that it becomes clear to you. मैं आपको example दे रही हूँ, तो आपको जो है ये सही समझ में आने लगा. मैं इसको थोड़ा मिटा दूं. अब ये सेंटेंस देखिए, Tom must study or else otherwise. We can use any of these conjunctions. या तो और लगा ले, या else लगा ले, या otherwise लगा ले. So अगर मैं तीनों का मैंने आपको दिया हुआ है, तो अगर आप एक ही लगाए, मैंने आपको दिखाने के लिए दिया था, तो अब यहाँ पे एक लगा रहा है और, ठीक है, और he will not pass. Okay, so we can use else and otherwise too instead of or. Okay, so or की जगह हम else otherwise भी use कर सकते हैं. Let's read the sentence again. Tom must study or he will not pass. Okay, so here we'll see that after this conjunction or, the sentence is negative. Okay, so what we'll do that we need to change this part of the sentence, not this part. Tom must study or he will not pass. So अभी मैंने क्या बोला था कि अगर और के बाद वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो आपको 2 plus v1 यूज करना है, यानी इन्फिनिटिव लगाना है. सो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका, Tom must study to pass. बस ये आपका बन गया एक सिंपल सेंटेंस विथ वन फाइनाइट वर्ब, स्टडी. ये एक फाइनाइट वर्ब है आपका, तो ये बन गया सिंपल सेंटेंस. अच्छा, अभी दूसरा हम देखते हैं कि कैसे टू अवॉइड प्लस v1 प्लस ing हम यूज करते हैं. नाउ I have written another sentence on the board. You can read it. He must eat healthy food or
he would get sick. Okay, so this is a compound sentence which is connected with or. We can use else and otherwise too. Now we need to change this sentence which is in positive form. ये वाला जो सेंटेंस है पॉजिटिव, मैंने कहा था अगर और एल्स के बाद आपका पॉजिटिव सेंटेंस आता है तो आप ये वाला यूज करेंगे, टू अवॉइड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. ओके, और अगर एल्स या अदरवाइज या और के बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आपको 2 + V1 यूज करना था. अभी हम इसको चेंज करेंगे. सो और के बाद वाला जो सेंटेंस है जो पॉजिटिव है उसे हमें चेंज करना है. सो वी विल चेंज इट लाइक दिस, ही मस्ट ईट हेल्दी फूड. और की जगह हम क्या करेंगे, ही मस्ट ईट हेल्दी फूड टू अवॉइड. अब यहां पे हमें क्या करना है, टू अवॉइड मैंने लिख दिया, टू अवॉइड V1 + ING. तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गेट वर्ब है. तो इस गेट को हम गेटिंग में चेंज करेंगे V1 में ING लगा के. तो ये बन जाएगा टू अवॉइड गेटिंग सिक. नाउ इट हैज बिकम सिंपल सेंटेंस. he must eat healthy food to avoid getting sick. ये बन गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है. वी मस्ट ईट हेल्दी फूड टू अवॉइड गेटिंग सिक. ठीक है, अब जो है ईट हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है. नाउ ये मैंने आज आपको 2 ही तरीके बताए बिकॉज आपका वीडियो लंबा होता जा रहा है. तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मैं आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि और कौन से कंजंक्शंस को यूज करके, मतलब जिसमें कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है उसको हम चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. ओके, सो टिल देन गुड बाय.